start our lecture, although suddenly the situation on the road is very uh, explosive, I can say, and kind of turmoil. और हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है, मिनटों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. All right, so let's talk about keep on. We have to, keep on studying. आपका आ जाए lecture? All right, चलें. So you can attend it here, no problem. So last time we were talking about some major components on related to the design of the processor. So let's connect them together. So that will be a very interesting exercise to connect all the components together to make our processor. So the first thing that comes in the processor that controls the speed of the processor is program counter, and the clock goes to this program counter. Program counter increments and gives the output to the instruction ROM. Instruction ROM. The size of this program counter determines how large the program can be. That can be stored in the, because this is address bus. So the 2 raised power address bus is total number of locations. So the size of this program counter uh, n is equal to size of program counter. Total number of instructions that can be stored is 2 raised power n. Total instructions. Usually in in desktop applications, this size is 32-bit. So the total program application size can be 4 gigabyte. Maximum size of an application can be 4 gigabyte. That includes code and hash, heap, everything that is there. So, but in the normal processor, this is n bit, and 2 raised power n is the total number of instructions that can be stored. The instruction is another parameter of the processor कि हर instruction किस size की होगी, इसको हम कह सकते हैं I is the number of size, I is the size of each instruction. या इसको INS कर लेते हैं, जरा ज्यादा नहीं मुझे पसंद आ रहा है. When this instruction comes out of this instruction ROM, it is divided in several components. So the bits fields are separated. There is no hardware. Some about 6 of this, 4 of these bit fields are called operation code. Operation code. This operation code is basically goes to the instruction decoder. So instruction decoder.
So this instruction decoder tells you what is the job of it. Has many outputs. This instruction decoder is basically decodes all the controls of the processor. This instruction decoder generates all the controls of the processor, and those थोड़ा सा ये ख्याल करना यार नादिर, जरा ना यार ये जूम इन जूम आउट करना पड़ता है कभी कभी, या ऊपर नीचे करना पड़ता है, देखे ना ये ऊपर से नीचे करना। बेशक इधर बैठ जाए जैसे भी है, ये सामने से इसका मेरा हल है वो कंट्रोल। So instruction decoder is basically, you can say, is the chef of the kitchen, is the kitchen chef, कि जो खा इंस्ट्रक्शन है उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और किस तरह से वो खाना पकाना है। So basically, this is the instruction decoder. It can understand all the instructions a processor can do. So basically, instruction decoder can understand all the instructions that a processor can do. If it does not understand, that is not a valid instruction code. So invalid instruction code will not be understood by this instruction decoder. The instruction decoder can only understand few instructions that are applicable to the processor. The instruction that a processor can do is given usually in the processor data sheet, and this is called the instruction set. इंस्ट्रक्शन सेट इज ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट अ प्रोसेसर कैन डू, ऑल तरह तरह के खाने जो एक प्रोसेसर पका सकता है, और वो खाने जो है ना वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर को समझ आती है। अगर आप ये इसको चाइनीज खाने वाला कह देंगे और ये प्रोसेसर जो है वो देसी खाने पका सकता है, तो ये विल नॉट अंडरस्टैंड कि चाइनीज खाना कैसे तुम पकाना। तो दिस इंस्ट्रक्शन सेट, अगर कोई आपसे पूछे वेयर इज द इंस्ट्रक्शन सेट, यू कैन से इट इज इन द इंस्ट्रक्शन डिकोडर that can understand the instruction and generate all the controls for the processor. What is instruction decoder? Java's instruction decoder is to generate all controls for processor. All right. So this is one component of this. Other part of this is uh, what is called the RS field. This is 3-bit. So I'm assuming that we have a 3-bit processor. So this is 3-bit. The other part of this instruction, the next 3-bit are RSB field. This is RSA field. This is RSB field. There are also 3 bits. Other one is control of, this is RD field, the destination. So you can see that instruction size is 6 for maybe up code, 3 for instruction RS field, 3 for instruction RB field, 3 for RD. So about 15 bits are already there. There is an 8-bit of immediate field. Immediate field in the instruction. So instruction has all the ingredients
or operands that are needed to perform a function. Some of these. Now we come to the what happens to the processor. How these instruction fields are important. We have first component that we have in the processor is register file. This is 8 by 8 size register file. And we have this RS field coming here. This is 3-bit RS field that selects to this. These are the registers R0 to R7 inside this. Because there are 8 registers, they are named R0 to R7. If you remember the last lecture, that's what we did. And also in the board that I have shown you many times on a register. So 3 bits for RS field. This RS field outputs data on A bus. RSA field, sorry, and these 3 bits are RSB field. This outputs data on B bus. And where will it go? कहाँ जाएगा ये दोनों? Simple as that. It will go to this circuit. Now, this is another symbol that is used for ALU, arithmetic logic unit, plus the shifter. So, output of this goes to the RD data in to the register file. So, see the link between this. RX goes here, RB goes here, data in goes out of the ALU over here to the register file. RD is the destination where the data is to be stored. RD field. All right. Black marker किधर है भाई? नादिर? Black marker. अच्छा वो पड़ा. So black marker, I have this. And the controls that come from here are the various controls that we have. One control that comes to this register file is register write. So if the instruction has some thing that is going to be written to the register file, instruction decoder will make this equal to 1. If it is not to be written to the register file, this will be 0. So the first type of instructions that we talked about last time were register to register instructions. I can say R7 gets the value of R0 plus R5, for example. So this will have a special instruction decoder. So instruction decoder will generate this function for this. Function के इसको कहेगा function. वो इसको कहेगा add. And it will make register write 1. अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरा चलता कैसे है? होता ये है कि क्लॉक साइकिल जो है
तो थोड़ी सी इस तरह की होती है क्लॉक। पॉजिटिव एज पे पीसी इंक्रीमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट होती है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है। तो देखें कितने काम होते हैं। पीसी इंक्रीमेंट होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, और उसका जो नई इंस्ट्रक्शन से जो आरएस फील्ड होती हैं वो रजिस्टर फाइल को जाती हैं, और हमें ए बस का डाटा मिलता है, बी बस का डाटा मिलता है। उस बी बस के ऊपर जो फंक्शन करना होता है वो एएलयू करता है, और हमारा खाना पक के यहाँ पे आ जाता है। ये सारे काम जो है ये इस टाइम में होते हैं, जो ये हाई टाइम है। रजिस्टर राइट है, उसको हमने इसके इन्वर्ट के साथ एंड किया होता है। रजिस्टर राइट जो है वो इसके इन्वर्ट के साथ एंड होता है, तो वो उसका हाई पॉजिटिव, इसका जो नेगेटिव एज है वो इसका पॉजिटिव एज होता है। इसको कह सकते हैं फेज 1 ऑफ द क्लॉक, इसको कह सकते हैं फेज 2 ऑफ द क्लॉक। फेज 1 इज वेरी लॉन्ग। ड्यूरिंग दिस फेज 1 ऑफ द क्लॉक, इधर दिखा दें थोड़ा नीचे करना, फेज 1 ऑफ द क्लॉक एवरीथिंग इज डन, पीसी इंक्रीमेंट होता है। इस क्लॉक एज पे पीसी इंक्रीमेंट होता है। सिर्फ यही है ना रजिस्टर, और तो कोई रजिस्टर नहीं है। रोम इज नॉट अ रजिस्टर। पीसी इंक्रीमेंट होता है, रजिस्टर ये इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट, इट जनरेट्स ऑल ऑफ दिस आउटपुट, इंस्ट्रक्शन आ जाती है आउटपुट पे। तो इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन रीड होती है, इसको भी टाइम लगता है। इंस्ट्रक्शन रीड होती है, और फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, फिर ए बस पे डाटा आता है, फिर ये रजिस्टर फाइल भी टाइम लेती है कुछ। तो ये ए फाइल पे भी डाटा आता है, फिर बी फाइल पे भी डाटा आता है, फिर एएलयू का टाइम भी होता है, जो सारा इंस्ट्रक्शन उसने अपना एएलयू ने भी कुछ टाइम लेना है। अगर इसमें एडर है, कैरी लुक हेड एडर है, या जो भी एडर है उसने कैलकुलेशन करने में भी टाइम लेना है। तो ये सारा टाइम ऐड हो जाता है। मतलब ये 1 नैनो सेकंड है, ये 4 नैनो सेकंड है, 5 नैनो सेकंड, प्लस ये अगर 2 नैनो सेकंड लगता है 7 नैनो सेकंड, ये अगर 10 नैनो सेकंड लेती है तो 17 नैनो सेकंड। ये पूरा यहाँ पीसी इंक्रीमेंट हुआ, ये सारे काम हुए। It took about 17 nanoseconds to do all of that. This is made not 17 nanosecond, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, फर्ज करेंगे 20 नैनोसेकंड इसको दे देंगे कि हाई टाइम ऑफ दिस क्लॉक फेज 1 विल बी 20 नैनोसेकंड। फेज 2 में सिर्फ इसने चूंकि रजिस्टर फाइल में राइट ही करना होता है, तो उसको छोटा रखते हैं कि अब इसके इस एज पे डाटा राइट होता है, या इस टाइम में डाटा सिर्फ राइट होता है, रजिस्टर राइट। इस टाइम में सिर्फ डाटा रजिस्टर में राइट होता है। इसको कहते हैं राइट बैक भी कहते हैं, रजिस्टर राइट भी कहते हैं, कई दफा राइट बैक भी कह देते हैं कि रीड किया, जो आंसर आया उसको राइट बैक करो किसी रजिस्टर में। सो दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच दिस इज डन, राइट बैक। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि फैच, इसको कहते हैं एग्जीक्यूट, फैच एग्जीक्यूट या जो भी है, ये फैच साइकिल राइट साइकिल, फैच साइकिल राइट साइकिल, फैच साइकिल राइट। ऐसा प्रोसेसर जो है ना, हर क्लॉक के साथ ही पीसी इंक्रीमेंट होता है, नई इंस्ट्रक्शन आती है, नया काम होता है, और सेकंड एज के ऊपर जो इसका राइजिंग एज होता है उसमें ये अ, इसके राइजिंग एज पे ये डाटा इसमें क्लॉक हो जाता है। तो नेगेटिव एज पे पीसी इंक्रीमेंट होता है, पॉजिटिव एज पे पीसी इंक्रीमेंट होता है, उसकी क्लॉक के फेज 2 में जो है ना वो तो राइट होता है। जो ये अर्लीस्ट प्रोसेसर इस तरह काम करते थे, वेरी अर्ली प्रोसेसर, जिसमें जो है ना इसको सिंगल साइकिल प्रोसेसर कहते हैं। सिंगल साइकिल मतलब एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी, और हर क्लॉक से और बहुत टाइम लेती थी हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए।
बाद में फिर वो पाइपलाइन प्रोसेसर आ गए, तो उसकी अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो दैट इज दिस, ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट, इट्स दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट इट with this hardware. All this, these are called register to register instructions. इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं R0, R0 प्लस, या कोई एक्सक्लूसिव R0। R0 को जब कभी क्लियर करना हो, उसको जीरो करना है, तो इस तरह से भी लोग जीरो करते हैं कि R0 को एक्सक्लूसिव आर करें R0 के साथ। तो उसको एक्स अगर आपने सी में लिखे, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सक्लूसिव आर वेरिएबल, तो वेरिएबल जीरो हो जाता है अपने आप के साथ। एक्सक्लूसिव आर होगा तो जाहिर है जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें, ये दो इनपुट आर्गुमेंट भी दोनों हैं। क्या आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू k प्लस के, तो k प्लस के में भी ये दोनों आर्गुमेंट सेम हो सकते हैं। ये फील्ड भी सेम हो सकती है, ये फील्ड भी सेम हो सकती है, और आंसर में RD फील्ड भी सेम हो सकती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आप इस रजिस्टर पे जो जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है वो यहाँ पे नहीं दे सकते। तो ये वाला काम जो है ना, ये रजिस्टर फाइल आराम से करती है। तो k इज इक्वल टू k प्लस के, वो बेसिकली आप एक ही ये वाला काम हो जाएगा। R0, R0 और डेस्टिनेशन इज फील्ड इज आल्सो R0, so तीनों फील्ड कैन बी सेम एज R0। All right, so all of these functions are given in the opcode, so you can have different functions appearing over here. Many different functions that we are talk about, including the shift component. So all of these can be done within the register file. Now the answer question is, how do you add a fresh values to the register file? For that we have this immediate value. That immediate value is basically comes over here. So we have a multiplexer here. And this immediate value comes over here. This is also 8-bit. This is also 8-bit in a 8-bit processor. This is also 8-bit. This is also 8-bit. And this is a mux. Mux. 0 1 कर लें, जो भी करना है, इसको 1 कर लेते हैं, फर्ज करें इसको 0 कर लेते हैं। So this field over here is connected over here. Now what we can do? We can do these instructions like R1 is equal to some 8-bit value. इधर लिख लेते हैं। We can do instruction R1 is equal to gets the value, some 8-bit value, R1 89 डेसिमल में है या जो भी है, अब ये इसमें आप, तो इंस्ट्रक्शन में ये यहाँ पर 89 होगा। तो ये वाला मल्टीप्लेक्सर का कंट्रोल भी आपको से आईडी से आता है, उसको पता है कि ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन है। जब आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है सी में, आपने हाई लेवल पे कोई इससे भी बड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी है, आपने लिखा है R1 गेट्स 89, तो आपने सी हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई लिखा होगा x इज इक्वल टू 89 और y इज इक्वल टू 89 और कोई भी वेरिएबल, और प्रोसेसर में जाकर वो रजिस्टर में उसने 89 स्टोर करना है, तो उसमें ये इमीडिएट वैल्यू होगी 89। यहाँ पे वो क्या करेगा, इस मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिकोडर जनरेट करेगा। अगेन वो करेगा, इसको कहते हैं इमीडिएट कंट्रोल। इफ इट इज 1, immediate will go here. If immediate is 0, it will do B will go here. तो इसको आप कह सकते हैं न्यू बी। ये बी है, ये न्यू बी है।
प्रोसेसर वैसे इसको बुक इसको भी बी कहती है, लेकिन आई लाइक कि ये वाले फर्क हो जाए, बस ये बस और है, ये बस और है, ये बस दिस इज न्यू बी, दिस न्यू बी कैन आइदर बी इमीडिएट डाटा or it can be the B file coming from the register. So in this case, the function that is given to this processor is that the output should be equal to ALU out, our result should be equal to B. So B comes here 89, it goes from here, it passes through the ALU without anything happening to this. B comes here and it is returned to the register file R1. The destination field for that is uh, RD is 1. तो इस रजिस्टर में उसको राइट करो. So this multiplexer controls our this function. You can also do this. This is another for this architecture you get another benefit, and you can do this this kind of instruction in high level. X is equal to y plus 10. So if X is, for example, register R7, you want to say R7 gets Y is register 5 plus 10. So you will get RS field will be register file, RSA will be register file, this, and 10 will be the immediate value coming from here. RSB field will also be there, but it will be don't care. It will become don't care because of this. रजिस्टर फाइल बी में कुछ तो उसने रीड करना ही है. नो मैटर व्हाट यू गिव ओवर हियर, इट विल रीड समथिंग, बट दैट विल बिकम डोंट केयर ओवर हियर. रिमेंबर, कुछ चीज वैल्यूज हम रीड करते हैं जगह जगह से, लेकिन कुछ को यूज करते हैं, कुछ को नहीं यूज करते. और ये मल्टीप्लेक्सर हमें ये चॉइस देता है कि क्या फील्ड, क्या चीज रीड करनी है, क्या नहीं करनी. So in this case, this will be don't care. This value will come here. So we'll have 10 over here. We'll have register R5 के contents over here because we have given 5 over here. So R5 के contents will come here. They will add it with 5. So we'll get for this instruction we'll get R5 plus 10, and that destination will be R7. So the result will be stored into R7. This is also an immediate type of instruction because it also activates the immediate multiplex. So we can now do three types of instruction, three types of instruction: R7, R0, R1. ये वाली थोड़ा सा नीचे करना. So this is immediate value. This is RSB, sorry, and this is RD. So this is now becoming more like a very powerful processor, very powerful processor. Now all we need is another thing that we need to add with this. And we are almost done with our processor. Now we can do all the instructions that we have talked about in the previous lecture. And we can add another field over here. That is this one.
address data in. This has a control called a memory write. That also comes from the instruction. So when we want to write something, we have to give that value on the B bus. Address should be on the B bus and the data should be on the A bus. Or vice versa. मुझे नहीं पता book ने क्या किया हुआ है. It can be both ways. And then on the positive edge of the on the second edge of the clock cycle, memory write happens. So all this is done. Address is generated, data in comes here, and on the second edge of the phase 2 of the clock cycle, a register write happens, and the data is returned to the memory. In that case, register memory write happens. In that case, register write is 0. Because when you are writing to the memory में राइट होता है डाटा, उसमें रजिस्टर में कुछ नहीं होता, तो ये वाला जो है कंट्रोल रजिस्टर राइट उस केस में 0 होगा. यहाँ से भी कुछ चीज होती है, यहाँ पे भी फंक्शन भी कुछ आ ही जाता है, यहाँ पे कुछ खाना पक के एलयू तैयार कर लेता है, यहाँ पे वो अपीयर भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा एड्रेस, कुछ ना कुछ ये कर लेता है. लेकिन चूंकि रजिस्टर राइट 0 है, तो ये सारा सर्किट डोंट केयर हो जाता है. रजिस्टर राइट 0 है, तो अगर मेमोरी राइट 0 कर दो, रजिस्टर राइट 0 कर दो, तो ये प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर सकता. इसके यूज इंग्लिश का डंग निकाल दिया मैंने. देख रहे हैं आप या नहीं? तो ये रजिस्टर राइट भी 0 करो, मेमोरी राइट भी 0 कर दो, तो फिर चाहे जो मर्जी प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता रहे, प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो ना रजिस्टर राइट अपडेट नहीं हो रही, मेमोरी भी अपडेट नहीं हो रही, तो ये क्या करके आ रहा है प्रोसेसर? कुछ भी नहीं कर रहा. So in every instruction, either register write is 1 or memory write is 1. There are instructions where both of them are 0. When register write is not done and memory write is not done, that are the control instructions. and program counter को हम उस वक्त उसमें कुछ राइट करते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो अभी आप अज्यूम करें कि वो चीज हमने नहीं पढ़नी. तो फेज 2 पे या तो रजिस्टर राइट होगा या मेमोरी राइट होगा इस आर्किटेक्चर के लिए. मेमोरी रीड कैसे होता है कि जब मेमोरी राइट नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स मेमोरी रीड हो रहा होता है. तो जो मेमोरी रीड आउटपुट है वो इधर आती है. यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर है जिसको कहते हैं मैम मल्टीप्लेक्सर. नॉर्मल फंक्शन के लिए प्रोसेसर का ये मेमोरी जो है, देखिए ये देखिए थोड़ा नीचे करना और थोड़ा राइट पे करना. नॉर्मल फंक्शन के लिए मेमोरी जो है ना, ये मेमोरी रीड में डाटा डैश भी जाता है, डाटा भी आता है, मेमोरी को डाटा आउटपुट भी कर देती है. ये कैश है, ये जो भी है, ये मेमोरी डाटा आउट भी कर देती है. लेकिन अगर हमने ये वाले ऑपरेशन करने हैं, R0 R5 R0 या ये करने हैं, तो ये वाला 0 हो जाता है, तो ये वाला आउटपुट आती है, ये वाली डोंट केयर हो जाती है. मेमोरी से डाटा रीड किया हुआ जो होता है, वो खाना जो हम फेंक देते हैं जब हमने रजिस्टर टाइप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, उस केस में हम ये वाला खाना फेंक देते हैं. वी डोंट यूज दैट आउटपुट. और जब हमने मेमोरी से रीड करना है, उस केस में जब हमने मेमोरी में रीड करना है, तो ये 1 कर देते हैं. उस केस में ये एड्रेस भी जा रहा है, डाटा भी जा रहा है, रिजल्ट भी कोई यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, तो लेकिन वो सारा डोंट केयर हो जाता है. उस वक्त जो मेमोरी से डाटा आउट आ रहा है ना, मेमोरी से डाटा आउट, वो यहाँ से ये सारे काम जो किसने करने होते हैं, ये सारे कंट्रोल किसने जनरेट करने होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन को देख के इंस्ट्रक्शन डिकोडर ने जनरेट करने होते हैं. ये वाला कंट्रोल भी इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम है जनरेट करना. ये काले काले जो है ना सारे,
ये वाला ये फंक्शन, मेमोरी राइट, ये सारे और मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और ज्यादा कंट्रोल बनते जा रहे हैं, और ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर की आउटपुट होती है वो वाले वो ये कि हर इंस्ट्रक्शन को देख के या ये गेट खोल देगा या ये गेट खोल देगा या ये गेट खोल देगा या ये गेट खोल देगा, कोई ना कोई इसमें सारे को इस तरह से मैनिपुलेट करना होता है कि प्रॉपर जो है खाना पक के जो इंस्ट्रक्शन चाहिए जहाँ पे जानी है उस जगह चली जाए। तो ये एक तरह से जो है ना ठक 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 गेट बंद होते हैं खुलते हैं हर इंस्ट्रक्शन के लिए, और वो डाटा जो है वो नजर आता है उस तरह। So this is something, this is the whole processor in front of you. This is the processor that we wanted to design in the beginning of the course. This can do all the instructions you can think of, including memory में array write करनी है, memory से that array read करनी है, और कोई function perform करने हैं, memory में data write करना है या नहीं करना. So all of those functions can be done using this simple processor. छोटा सा processor है, but yet it is practical, it is very powerful. It's not just a dream. कोई ये नहीं है कि आपको कोई ख्वाब नजर आ रहा है या कोई हमने pedagogically ये बनाया है. This is all that this can be done using RAM, ROM, and register file and everything. So this can be done very easily. Nothing in there that is not doable. So any question now? Any questions? Ibrahim, Hassan Shabir, कोई question? शाहजेब, सर मेमोरी सॉरी क्या? सर ये मेमोरी मल्टीप्लेक्सर आपने बताया था. हाँ हाँ, सर बस इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसका कार्य क्या है. इसका अच्छा हाँ डेटा इसका तो हमारे देखते पास हैं आ अभी, रहा है. इसका अभी देखते हैं. छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं ना आरटीएल में, कि फर्ज करें आरटीएल में हमने ये प्रोग्राम लिखा है, R1 गेट्स द वैल्यू, R1 गेट्स द वैल्यू ऑफ 58. तो इस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट डिफरेंट प्रोसेसर ने क्या काम करने हैं. उसने RS ए फील्ड पे क्या रखना है, RS ए फील्ड, इसको मैं खाली ए फील्ड कह देता हूं, आर को छोड़े. ए फील्ड पे उसने क्या रखना है, डोंट केयर. बी फील्ड पे क्या रखना है उसने, डोंट केयर, क्योंकि हम कोई भी रजिस्टर से नहीं रीड कर रहे कुछ भी. ए बस पे क्या होगा, डोंट केयर. बी बस पे क्या होगा, डोंट केयर. न्यू बी बस पे क्या होगा, न्यू बी बस पे क्या होगा, 58, जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर से आएगा, यहां से आया 58. और ये और इसका कंट्रोल क्या होगा, इस मल्टीप्लेक्सर का कंट्रोल क्या होगा, 1. इसको हम कहते हैं इमीडिएट मक्स, इसका कंट्रोल होगा 1 ताकि ये वाला डाटा आगे जाए. आगे कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, मेम मल्टीप्लेक्सर.
अब मैम मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा कि वो इसको आगे उसने जाने देना है, तो ये 0 होगा क्योंकि हमने 58 को थ्रू इधर से डायरेक्ट गुजरने देना है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा कि आउटपुट होनी चाहिए बी, न्यू बी। और उसके बाद क्या आता है, रजिस्टर मेमोरी राइट क्या होना चाहिए, मैम इसको क्या, इसको मैम नहीं कहेंगे, एम आर कह देते हैं, मेमोरी राइट, एम डब्ल्यू, सॉरी एम डब्ल्यू, थोड़ा ऊपर करना, जूम करना। मेमोरी राइट विल बी 0। So this is what processor state will be when this instruction comes. एंड आखिर में रह गया रजिस्टर राइट, वो 1 होगा। यार यार जगह ही नहीं है। रजिस्टर राइट विल बी 1। So this is how this is going to work. All of these fields will be generated. A bus पे doesn't matter, B bus पे doesn't matter, A bus पे यहाँ पे doesn't matter, B bus पे doesn't matter। ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एम्बेड होगी ये फील्ड वैल्यू 58 that will go through this, that will pass through this, and this will be returned to the register file। तो अभी भी थोड़ी इसमें जगह कम है मेरे पास। सॉरी, ये रख लेते हैं। ये हमारे पास है इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास है आर एस, सॉरी इसको कहते हैं ए फील्ड, नहीं वो तो ये बस पे होगा, तो इसको कहेंगे आर ए, जिसे कहेंगे आर बी, फिर आ जाता है हमारे पास ए बस। ये सारे, ये 3 बिट की हैं, ये 3 बिट की है। ये इंस्ट्रक्शन का साइज डिपेंड करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शन है। ए बस पे 8 बिट का डाटा आएगा, बी बस पे भी 8 बिट का डाटा आएगा, और बी न्यू पे भी 8 बिट का डाटा आएगा, न्यू बी। न्यू बी कर लेते हैं, एन बी, इसमें भी 8 बिट का डाटा। ये तो सारे डाटा था आगे। उसके बाद कंट्रोल आ जाते हैं। कंट्रोल क्या होंगे, रजिस्टर राइट 1 होगा क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन ने रजिस्टर में राइट करना है। R1 गेट्स द वैल्यू 58, तो रजिस्टर राइट 1 होगा, मेमोरी राइट 0 होगा, इमीडिएट मक्स जो है वो 0 होगा,
इमीडिएट वैल्यू जो है वो 1 होगी, सो दैट दिस डाटा कैन गो थ्रू। और क्या था, ये वाला मल्टीप्लेक्सर, मैम मल्टीप्लेक्सर जो है वो 0 होगा, बिकॉज वी वांट दिस वैल्यू टू गो आउट। और डी फील्ड जो है ये भी 3 बिट की होगी। इस केस में ये होगी क्योंकि 001, क्योंकि आपने रजिस्टर 1 में राइट करना है, तो इसकी वैल्यू होगी 001। इस हम प्रोग्राम समझते हैं, एक प्रोग्राम ही लिख रहे हैं। दूसरी इंस्ट्रक्शन है आर ए डोंट केयर, आर बी डोंट केयर, ये डोंट केयर, ये डोंट केयर। और एक कॉलम रह गया था यहाँ पे, वो है इमीडिएट वैल्यू। इमीडिएट वैल्यू दैट इज 58। इस तरह से ये सब देखें, हर चीज अपनी अपनी जगह पे पहुंच गई। प्रोफेसर ने इसको खाना पकाना है, पॉजिटिव क्लॉक साइकिल पे ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा, नेगेटिव और उसके नेगेटिव एज पे रजिस्टर राइट हो जाएगा, और 58 वैल्यू जो है वो आर डी यानी R1 में राइट हो जाएगी। अगली इंस्ट्रक्शन है R2 गेट्स द वैल्यू ऑफ 69, 60, 68, एंड R3 इज अगेन, वो इसके लिए भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे न्यू बी यहाँ पे आ जाएगा 58, यहाँ पे आएगा 68, ये सारा वही। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि अब हम रजिस्टर 2 में राइट कर रहे हैं, और यहाँ पर 50 फील्ड आ जाएगी 68। अब हमने फर्क करें, ये वाली इंस्ट्रक्शन करनी है, मेमोरी R2 गेट्स द वैल्यू R1। हम मेमोरी में लोकेशन नंबर 68 पे हम डाटा क्या राइट करना चाह रहे हैं, 58। इस केस में क्योंकि एड्रेस किस में जा रहा है, एड्रेस जा रहा है न्यू बी पे, तो हमें बी बस पे एड्रेस चाहिए। तो R2 जो होगा वो बी बस की साइड पे आएगा, R2 यहाँ पे आएगा विच इज 2। तो बी बस पे ये 2 वैल्यू आएगी, 0 0 0 1 0। ए बस के ऊपर हमें चाहिए जो डाटा हमने राइट करना है मेमोरी में, ये वाला थोड़ा इधर करना यार, थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पे हमें एड्रेस चाहिए, यहाँ पे हमें डाटा चाहिए। तो एड्रेस चाहिए न्यू बी पे, वो मैं बी से भी लेके जा सकता था, लेकिन न्यू बी पे मैं ले गया हूँ, चले कोई बात नहीं है। तो आर ए पे हमें चाहिए डाटा, तो यहाँ पे हम R1 फील्ड दे देंगे। ए बस पे हमारे पास आ जाएगा 58, जो मेमोरी R1 में पड़ा हुआ है। बी बस पे आ जाएगा 68, जो कि एड्रेस है, ये दिस इज द पॉइंटर वेयर द डाटा इज टू बी रिटन। न्यू बी भी 68 हो जाएगा क्योंकि यही हमें चाहिए। और इसमें रजिस्टर राइट डोंट केयर हो जाएगा, 0 होगा क्योंकि हम रजिस्टर में नहीं राइट कर रहे, हम मेमोरी में राइट 1 हो जाएगा। इमीडिएट वैल्यू डोंट केयर, और इमीडिएट वैल्यू 0, मल्टीप्लेक्सर 0 होगा क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। और ये मेमोरी वाला डोंट केयर होगा क्योंकि जो भी यहाँ से वैल्यू जाएगी, रजिस्टर राइट चूंकि 0 है तो ये डोंट केयर हो जाती। आरडी डोंट केयर होगा क्योंकि इसमें आरडी कोई नहीं है, इसमें हम डाटा मेमोरी में राइट कर रहे हैं। इमीडिएट वैल्यू भी डोंट केयर होगी क्योंकि कुछ नहीं हम कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि 60 बी बस जो है
68 लोकेशन में, तो ये बेसिकली ये करेगा कि मेमोरी 68 लोकेशन के अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर, ये वाली मेमोरी लोकेशन के अंदर 58 डाटा राइट हो जाए। तो इसके लिए हमें ए बस पे डाटा बस पे 58 डालने की जरूरत है, एड्रेस बस पे 68 डालने की जरूरत है, और मेमोरी राइट को 1 करने की जरूरत है, रजिस्टर राइट को 0 करने की जरूरत है। आप समझ आई ये कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? अब अगर हमने थोड़ी देर बाद ये वैल्यू मेमोरी से, फिर मैंने पूछा, फिर मैं एक और चीज नहीं समझा, ये तो समझ आ गया, तो ये नहीं समझा कि जो आपने आर बी राइट किया है, जो ये आर बी वाला कॉलम है, हाँ हाँ, उसमें 2 क्यों आपने किया है? 2 क्यों किया है? देखे ना, ये है ना आरबी, इधर करेंगे, इधर आरबी ये है, आर ए ये है, ठीक है, दिस इज आरबी एंड दिस इज आर ए। तो मुझे रजिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए जो कि मैंने डेस्क बस के तौर पे देनी है। तो यहाँ पे मुझे ये आरबी, यहाँ पे इस बस पे जा, देखिए ये वाली बस जा रही है डेटा बस के साथ कनेक्टेड है, रैम की मेमोरी एड्रेस बस के साथ बी बस कनेक्टेड है। तो बी बस पे मुझे कंटेंट इस इंस्ट्रक्शन के लिए किस रजिस्टर के चाहिए? इस इंस्ट्रक्शन के लिए R2, ठीक है, R2 के चाहिए ना, क्योंकि वो एड्रेस बन रहा है इस केस में। ये देखें, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है R2 को फेच कर रही है, और R2 जो है वो एड्रेस बन रहा है इस केस में। अच्छा, तो हम लोगों ने R2 एक्सेस करने के लिए 2 किया। हाँ, तो इसको यहाँ आरबी में अच्छा, इसको तो ये R2 को समझ आ एक्सेस गया, करने के लिए 2 किया है। जब R2 को 2 करेंगे तो यहाँ पर R2 के 2 आ कंटेंट्स आ जाएगा। जाएंगे, जो कि 68 है यहाँ पे, वो 68 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सर समझा 68 गया, यहाँ ठीक है। से 0 होगा तो ये 68 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ 68 आ जाएगा। ए बस पे हमने दिया हुआ है कौन सा रजिस्टर दिया हुआ, R1, तो यहाँ पे R1 देंगे तो यहाँ पे R1 पे 58 आ जाएगा। जो R1 के कंटेंट्स हैं वो इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ 58 आ जाएगा, तो डाटा इन हो जाएगा 58। अब जब सेकंड आएगा क्लॉक का तो मेमोरी राइट सिग्नल एक्टिवेट होगा, तो इस एड्रेस पे ये डाटा राइट होगा। तो ये वेरिएबल हमने मेमोरी में राइट कर दिया। अब हमने फर्ज करें किसी और रजिस्टर में ये वैल्यू रीड करनी है, तो फिर क्या होगा? हमने करना है कि R7 को हमने रीड करना है, मैम R2, बेसिकली R1 की वैल्यू पहले मेमोरी में राइट की थी, अब उसकी मेमोरी से उठा के R7 में भी कॉपी करना है। क्योंकि ये डाटा मेमोरी से कॉपी करना है, तो अब एड्रेस पे हम क्या देंगे? अगेन R2 ही देंगे, क्योंकि उसी लोकेशन से हमने रीड करना है, तो 68 देंगे। और ए बस पे यही 58 डाटा इन डोंट केयर हो जाएगा, क्योंकि हमने रीड करना है मेमोरी से। इस केस में डाटा इन डोंट केयर हो जाएगा। हमने डाटा आउट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी डाटा आउट क्या करती है, तो उसके लिए सिर्फ एड्रेस देना है। ये एड्रेस देंगे, 68 लोकेशन पे डाटा आएगा, वो था 58, वो यहाँ पे आ जाए। तो इसमें ए बस जो है वो डोंट केयर हो जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन के लिए ए बस डोंट केयर हो जाएगी, क्योंकि हम डाटा नहीं दे रहे मेमोरी को। बी बस इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एड्रेस देना है, तो ये इस केस में ये R2 ही रहेगा एड्रेस, विच इज इक्वल टू 2। और ए बस पे हमारे पास एड्रेस आएगा R2 का, विच इज 58। हाँ, ये डोंट केयर है। बी बस पे 68 आएगा, ये एड्रेस भी 68 आ जाएगा यहाँ पे, और रजिस्टर राइट 1 हो जाए, मेमोरी राइट 0, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन 0। मैम इसके इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा यहां से आना है और इधर से होके ये दरवाजा खुलेगा, इधर जाएगा, तो इसको 1 होना मस्ट है।
तो इस केस में मेम वाला मल्टीप्लेक्सर जो है उसको हम 1 करेंगे। ये जो डाटा 58 आया वो यहाँ पे आ जाएगा 58। अब डाटा को फॉलो करें, कौन सी वैल्यू कहाँ से आनी है, किधर जाएगी, कैसे पहुंचेगी। वो यहाँ पे 58 डाटा इन पे आ जाएगी, रजिस्टर फाइल के इन पे आ जाएगी, और वो कहाँ पे राइट होगी, रजिस्टर राइट 1 है, आरडी फील्ड के R7 111 R7, तो इस R7 में राइट हो जाएगी, इमीडिएट वैल्यू डोंट केयर। तो R7 यहाँ पे आएगा, और ये 58 वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे R7 आ गया, ये 7 फील्ड है 7, तो इसका रजिस्टर 7 में 58 आया, और जब रजिस्टर राइट फेज 2 पे एक्टिवेट होगा तो रजिस्टर फाइल में रजिस्टर 7 में 58 राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने आखिरी देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन पे, देन वी कैन एंड। समझ आ रही है भाई? एक और देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन आर। अब हमने करना R3 वैल्यू है हमारे पास R7 प्लस R1, तो अब हमने R3 में R7 प्लस R1 करना है, तो ये हमारा A बस पे आएगा, ये हमारा B बस पे आएगा, तो RA जो होगा वो 7 होगा, RA will be 7 1 1 1, RB will be 1 0 0 1। A बस पे आ जाएगा डाटा जो कि R7 में स्टोर था, तो वो ऊपर हमने देखा था कि वो तो हमारा 58 स्टोर हो रहा, R1 में भी डायरेक्ट हमने स्टोर किया था B पे 58, तो ये 58 ही हमें ALU की आउटपुट पे भी चाहिए, तो ये 58 यहाँ पे भी आ जाए। रजिस्टर राइट 1 होगा क्योंकि R3 में, और मेमोरी राइट 0 होगा, इमीडिएट वैल्यू डोंट केयर क्योंकि इसमें कोई इमीडिएट वैल्यू नहीं है, और RD फील्ड जो है वो R3 होगी 0 1 1 R3। मैम जो है वो 0 होगा क्योंकि ये A प्लस B हमें यहाँ से चाहिए, तो RD फील्ड होगी 3 और इमीडिएट वैल्यू डोंट केयर। अब क्या होगा कि अब गौर से देखिए ना कि इधर हमने दिया है R7 के कंटेंट यहाँ पे आ गए 58, इधर दिया R1 के कंटेंट भी आ गए 58, तो 58 यहाँ पे आए, 58 ही यहाँ पे आए, और यहाँ पे प्रोसेसर ने ऐड का फंक्शन जनरेट किया है, जो ऐड का फंक्शन होगा उसमें 58 प्लस 58 यहाँ पे आएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू 116, वो यहाँ पे आएगा। दिस 116 विल बी सिलेक्टेड, 0 सिलेक्ट होगा तो सम जो है 116 वो यहाँ पे आएगा। गौर से देखते हैं, 116 विल कम हियर। अब किसमें राइट होगा, रजिस्टर राइट में को हमने RD फील्ड में दिया हुआ है, तो RD फील्ड देखें क्या है कि RD फील्ड हमने दी हुई है 2 3, क्योंकि उसमें हमने राइट करना था, तो ये यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 116 होगा, तो रजिस्टर 3 में 116 रजिस्टर राइट एक्टिवेट होगा, तो रजिस्टर 3 में 116 राइट हो जाए। तो इस तरह से ये इसमें अब कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये जेनेरिक मैंने प्लस लिखा है, इसकी जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसमें और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, और क्या सकते हैं, और भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, A+1 भी हो सकता है, A-1 भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबिलिटीज। So these different type of instructions, that's how they go through this process. So it can perform almost all the instructions other than control instructions that we can think of. So this processor can do all of those instructions. So any question now? अब समझ आ गई आपको कौन पूछ रहा था? Any more questions? Ibrahim?
So next time we can do is that we can again do some more instructions, how the controls are generated against those instructions. So please follow the book and make a chart according to this chart over here, so that we can fill different values on this instruction, क्योंकि यही एग्जाम में भी आना है। आपको इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट बताना होगा कि प्रोसेसर में वो किस किस बस पे क्या क्या वैल्यू आए, तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? 12 देखें लेक्चर, फिर समझ आ जाएगी आपको। आपको आ रही है ना? All right, so let's end it here today. I think we have studied a very important thing that we wanted to do. From the beginning of this course, we wanted to make a processor. So this is a very simple 8-bit processor which can do 4 or 5 different types of instructions. Everything is there, how the registers are populated, how the memory is populated, and everything is there, how the register to register operations are done. So all the information is there on this processor. कोई ऐसी चीज जो नहीं है जो हमने बड़ी एक्सटेंसिवली पढ़ी ना हो। हमने सारा रजिस्टर फाइल बड़ी डिटेल में पढ़ा, मल्टीप्लेक्सर पढ़े, ALU पढ़ा है। कोई ऐसी चीज नहीं है इस पूरे प्रोसेसर में जो कि हमने कोई नई चीज बनाई हो। So that's just about it. Thank you very much, and Allah Hafiz. Question है? All processor work this way. All processor work this way. Only thing is that they have many more functions to do. So all the processors are almost the same thing. Only when you go to some advanced architectures where you have pipeline processors, so then you have some pipelining procedure in there. The fundamental architecture, you will see register file, ALU, RAM, and these are the very fundamental things you will find in every process. एक रजिस्टर फाइल होगी, एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होगा, एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी होगी, एक प्रोग्राम काउंटर होगा। तो प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर फाइल, ALU, रैम, ये सारे हर एक और ढेर सारे मल्टीप्लेक्सर। तो ये सब कुछ मिलके दे मेक अप योर प्रोसेसर। Every modern day processor is made up of these fundamental components. ठीक है? This is what it is. Okay, thank you very much. Let's finish over here.